Good evening, everybody. Namaste and welcome. Welcome to this session, The Magic by Rhonda Byrne. Okay, the session is based on the book written by Rhonda Byrne. The name of the book is The Magic. The participants, I would request you all to please keep your cameras on, okay, so that we can see each other. Yes, thank you so much. So you must be wondering what is this session about. Before we begin, I welcome all of you and I acknowledge you for registering, taking your time out, and being here on this session. I hope you are okay with English. Otherwise, also the reading will be done in English and explanation or our discussion will be in Hindi. So let me introduce myself first for those who are new to me, who don't know me. My name is Pragati. In life, I am a children of mother of two children, a wife. For living, I'm an educator and I'm into this. I have trained myself to be a coach in life, and my passion is teaching, reading, and traveling. I'm also a pranic healer where we heal the people. It is a no touch method. We do not touch the patient, but still we can heal them of many diseases and aid in the recovery, healing. I'm also a Nichiren Buddhist practitioner. Nichiren Buddhism is based on the Lotus Sutra, which believes in the law of cause and effect. In other way, we call it law of karma. Okay, so this is what I am. So I would like the people. Okay, so you can raise your hand and tell me from where you are. And if you all are totally new to the session, please raise your hand. You all don't know anything about this session. And maybe you have registered on your own, or your parents have asked you to register, or you have just read something about it. Those who are totally new about this session, you may raise your virtual hand or even this hand. Yes. Okay. Chavi. Okay. Hitesh. Got it. Yes. Through Sahib. Got it. Great. So let me tell you what this session is about. Okay. And yeah. Ruby, I got it. Saeli, okay, got it. Okay, you can lower your hands now. So let me tell you first what I got from this session. And then we will discuss what is this session. I would also invite our past participants to share what they got and what exactly is this session about. So, how it came about? ये कैसे शुरू हुआ? Is everyone okay with English? Okay. ठीक है. So I will use both the languages. Okay. So how did it come about, this The Magic? So this is the Rhonda Byrne's book, The Magic. It all started in COVID. I had read this book somewhere long ago in 1998. I'm very fond of reading, very fond of reading. और जो book हाथ लगे वो मैं उठा के पढ़ लेती हूँ और उसको प्रैक्टिस करने लगती हूँ. तो ये बुक मैंने 1998 में कुछ करी थी पर कुछ समझ नहीं आई थी. It all started in COVID. During COVID, I and my sister Pramila. Okay, Pramila saw something on the YouTube, such session going on, and she said, "Let us do it together, both of us, for our family." I said, "ठीक है, चलो मैं इंग्लिश में बुक पढ़ती हूँ और आप हिंदी में पढ़ोगे." और ऐसे करके हमने छोटे से ग्रुप में ये शुरू किया. और बढ़ते बढ़ते then I thought, let us call my friend. She said, let me invite my friend also. And slowly कारवा बढ़ता गया और इतना ज्यादा हो गया. Whole of the, I think we are doing it from last, I think we started in April 2020, correct? And today we are here, July 24. All these years in between, I had stopped doing the sessions, but there were master classes happening. Correct. So let me tell you, this session, what you have registered for is actually totally free. The amount of registration is only your commitment fee. It is that you are committed to attend.
and after deducting the expenses, the amount is going to the charitable organization. It may go to an old age home or an orphanage. Okay. तो ये एक बता दूं कि ये वाला जो सेशन है टोटली फ्री है. आपने जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट अगर कुछ भरा है तो उसका अमाउंट एक्सपेंस डिडक्ट होने के बाद चैरिटेबल होम में जाएगा. ठीक है, ओल्ड एज होम में. सो दिस इज इन द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्म बीइंग. ओके, पार्टिसिपेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्म बीइंग. जब आप ट्रांसफॉर्म बीइंग से जुड़ते हो तो आप ऑटोमेटिकली समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पहली बात. अब आते हैं इस बुक की तरफ. तो मैं और मेरी सिस्टर ने ये बुक शुरू किया. तो मुझे क्या मिला इस बुक से? इस बुक में आने से पहले, बिफोर कमिंग or before starting this book, what was my life like? So health-wise, I would fall sick quite often. Correct. In fact, one of my friend would call me, "तू तो बहुत नाजुक है रे. थोड़ा मौसम बदलता है तो तू बीमार हो जाती है." You know, that was famous कि या ये बीमार होती है. I used to take my leaves, most of the leaves in the month of July, in December, whenever there was a change. After doing this, I don't think I've taken any sick leave. I've taken leaves for my personal work, but not because I was sick. Talking about my relationships, so it was okay. चल रहा है जैसे सबका चलता है ना. Everybody busy in their own world. सब अपने अपने में चल रहे हैं और क्या बोलते हैं, हाँ चल रहा है. बच्चे कैसे हैं? हाँ ठीक है, चल रहे हैं. अब उनके वर्ल्ड में क्या चल रहा है पता नहीं. Thanks to the mobile, we don't know what is happening in their world. But okay, ठीक है. Hey, hello, good morning, mama. Good morning, good night, बेटा. हाँ बेटा, खाना खाया, बस. After doing this magic, we came so close. You know, we are open to talk to each other now. Openly share with each other. Okay. So relationships have improved not only with my children, but with my husband also. And there were so many clashes, like, you know, why is he not understanding me? I would say he's so different. इनके साथ रहना तो कितना मुश्किल है, बाप रे. This is what I would feel, correct? At, you know, it was almost at a verge of compromise. Okay, we are living, but today it has transformed to real partnership. And it's all what I have got from this session. Another important thing I got from this session is my house where I'm living. The flat, the 2 BHK flat which I have purchased on the Borivali Link Road, okay, which almost seemed impossible in Mumbai to get a house like this, shifting from the suburbs of Mira Road to this, correct? It was really a dream house I created for myself with this practice of this thing. Talking about my personal desires, buying the diamond set or diamond ring and gold, or buying the furniture we wanted for our house as we shifted to the new house. Everything is achieved exactly as per our dreams. Now, talking about the travel, the last thing, correct? There are many things I have got. इतनी चीजें हैं, लेकिन जो मैं मोटी मोटी चीजें आपसे शेयर कर सकती हूँ. तो अबाउट माई ट्रैवल, आई लव ट्रैवलिंग, राइट? तो वॉट एवर नेम्स एज पर दिस बुक, मैंने जो जो चीजें घूमना चाहती थी मैंने लिखी. तो पहले मैं घूम कर आई लद्दाख, करेक्ट, जो मैंने बिल्कुल मेरे सपनों की दुनिया थी. पिक्चर्स में देखे थे मैंने, मूवीज में, मैगजीन्स में देखी थी वो चीजें, वो मैं लद्दाख जाकर आई. आई वेंट टू केरला, गॉड्स ओन कंट्री. आई वेंट टू तिरुपति. आई वेंट टू मणिकर्णिका घाट. ये सब मैंने जो कोरोना में लिया था. एंड आई ऑल्सो रिसेंटली हैव बीन टू भूटान, लाइक जीरो कार्बन. इट वॉज माई ड्रीम प्लेस. ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ मैजिक. was just a magic. क्योंकि यूजुअली हम कुछ प्लान करें, एक छोटा सा सेशन भी अटेंड करना होता है, मतलब यार टाइम नहीं है, देखना पड़ेगा, कैसे करेंगे, है ना. तो इतनी बड़ी ट्रिप करना, मैजिक. देन बहुत सारी और चीजें आई हैव अकम्प्लिश्ड, बट नाउ आई वुड इनवाइट our former participants who are there, ardent participants, to share what they have got. So Prachi Pathare is with us.
a very good friend जिन्होंने हमें कोविड में ज्वाइन किया, and she herself conducted these sessions in Marathi in the evening. Yes, welcome Prachi. Hello everyone, good evening. It is pleasure to meet you here, like Pragati, to be with Pragati actually. And believe me, it is magic. You just need to believe it and magic will happen. So the belief is the key word. And do, as what Pragati said, do attend every day. Now coming to my thing, my life was very happy and suddenly then there was some changes and life went from ninth heaven to directly under in dungeons. And when I met Pragati with her experience and with the magic and the belief in magic, I changed my life. You might feel it is a sermon, but believe me, after 15 to 20 days, you all will start believing me. And you yourself will try and share all these things that, yes, this positive things have happened with me. So definitely there was a drastic change in my life. Thank you, Pragati. Thank you for sharing, Prachi. And yes, can I invite, let me see who is it? Yeah, Pramila, can you invite Pramila is my sister and she has been conducting magic sessions with me in Hindi throughout the lockdown, and also she is a life coach. She has done many trainings. She is also a प्राणिक healer. तो प्रमीला, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हाँ नमस्ते। मैं आज विंडो नहीं ओपन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो है और आई एम रियली थैंक यू। और प्रगति जी के साथ मैंने मैजिक, जैसे प्रगति ने बताया, हिंदी में स्टार्ट किया था और बहुत बहुत मैजिक हुए। इसमें से मैं आपको सिर्फ 2 मैजिक शेयर करूंगी आज। और छोटे छोटे तो बहुत मैजिक हुए। जैसे कि मैं बताऊं, मेरे हेल्थ का, मेरे घुटनों में दर्द था, मेरे बाल पूरे डेड थे जो आज पूरे अलाइव हो गए हैं बाल मेरे। और सब पूछते हैं कि आपने कौन सा केराटिन कराया, लेकिन मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए मैजिक से। और कई चीजें, जैसे मैं ड्राइविंग में डरती थी, किसी के बाजू में बैठती थी तो लगता था कि स्लो चलाओ, और मेरे हस्बैंड भी चलाते थे तो लगता था कि कहीं कुछ हो जाएगा। और अब मैं ड्राइव इतना मतलब इंजॉय करती हूँ, कोई भी ड्राइवर चलाए मैं उसके बाजू में बैठ जाती हूँ। तो मतलब बहुत सारा नेचर में भी चेंज आया और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया और इतनी खुशी आई, जो खुशी मैंने मतलब बहुत सालों तक मिस की थी। मतलब मैंने मजे नहीं किए थे, जैसे बोलते थे, कभी मैंने ऐसे देखा नहीं था कि ड्राइविंग में भी इतना मजा होता है। ऐसा तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ा मेरा ड्रीम जो पूरा हुआ कि मुझे एक बंगलो चाहिए था जिसके आसपास बहुत अच्छी ग्रीनरी हो, खूब सारे नारियल के झाड़ हो, केले के पत्ते हो, और सुबह सुबह व्हाइट बर्ड्स आते हो वहां पे। और बंगले के अंदर ना झूला होना चाहिए, और उसमें 8 बेडरूम्स रहने चाहिए, और बहुत अच्छा बड़ा हॉल रहना चाहिए। और मेरा जो सनराइज है वो ईस्ट से मेरा बंगलो का गेट होना चाहिए। और वही सब मुझे मिला है, प्रगति को पता है। आज के दिन मैं जिस बंगलो पे रहती हूँ, 2 बड़े बड़े झूले हैं, व्हाइट बर्ड्स भी आते हैं सुबह में, और चारों तरफ ग्रीनरी है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल, और ये सब हमारा पॉसिबल हुआ है मैजिक की वजह से। थैंक यू प्रगति, थैंक यू सो मच। Thank you, Pramila, for sharing. So now our participant must have got a little idea कि ये क्या मैजिक चीज है, क्या कुछ तो मैजिक होता है। तो now I would like you all to raise your hand, unmute yourself, and tell me what do you expect from this session. आप क्या चाहते हो इस सेशन से? तो yes, we start with Rashmi. तो हाय मेरा मैम। क्वेश्चन है, हाँ हेलो, तो मेरा ये है कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस सेशन से? आप क्या अपेक्षा लेके आए हो? आप क्या सोच कर आए हो? आप क्या चाहते हो इस सेशन से? एक्चुअली मेरे थोड़े हेल्थ इश्यू है तो वो उसमें रिकवरी हो, और लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स है जो सॉर्ट आउट हो जाए, ओके, गुड। और थोड़े ड्रीम्स भी है जो फुलफिल हो जाए। ओके, तो मैं बोलूंगी थोड़े नहीं, आप सारे ड्रीम्स लिख सकते हो, सारे। और फिर मैं बोलूंगी सारे नहीं, बहुत सारे। Write lot of dreams, and believe me, all your dreams will be fulfilled. All. Okay, yeah, thank you.
Yes, Haripriya, good to see you. Hi, ma'am. Hello. Congratulations, first of all, for your 10th standard result. Thank you. Yes. So tell me. now in 11th, there is a lot of pressure and stress, school, tuition, everything. So I'm having a rough time managing, and I have to prepare for entrance exam also. So first I told my dad that right now I don't have time because July May there is exams from 15th. So how will I manage with the session and school and tuition? So he said that trust me, it will help you in your studies too. So just try joining again because it's been 4 years and now I'm joining finally and I feel very happy that I'm here. Yes. Thank you so much. So first thing, let me tell all the viewers, Haripriya has been reading for us so beautifully when she was a kid 4 years ago. So now she has become a beautiful little girl, I should say little lady. But she was the one who used to read for us during the COVID. And 1 second. And I acknowledge you, Haripriya, for listening to your dad and coming to this session, joining the session. I really appreciate you and acknowledge you for being a very good daughter. And I assure you, इसके साथ मैं आपको दिलासा दिलाती हूँ कि आपका समय बिल्कुल नष्ट या वेस्ट हुआ ऐसा आपको नहीं लगेगा. You will be more charged up to face not only this competitive exam, but any competitive exams in future. Okay, thank you so much for sharing. Yes, Saili. Saili, can you unmute yourself? Okay. Who else? I want the participants to say what do you want. Hitesh, what do you want from this session? Hey, Shraddha is here. Hi, Shraddha. Welcome. Would you like to share? She's one of our participants and also a very good reader. Yes, Shraddha. Hi, Hello. I love you always. Love you too. मैं शेयर करना चाहती हूँ. सबसे पहले आपके साथ जब से मैं मैजिक के साथ जुड़ी हूँ, आज तक मैजिक मेरे साथ है. द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी एंड माय फैमिली अलाइव. एंड ये तो मैं रोज बोलती हूँ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ आफ्टर ऑल. एंड आई ऑलवेज से मतलब आपके वजह से बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ में मैजिक के साथ. एंड मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि आप प्योर सोर्स ऑफ यूनिवर्स है जो हम तक ये मैसेज लेके आए. थैंक यू सो मच. डिवाइन ग्रैटिट्यूड. एंड आई एम रियली थैंकफुल कि सी फॉर एवरीवन, किसी को भी लाइफ में एक स्मूथ पाथ में आने के लिए अप एंड डाउन हर एक को है लाइफ में, और शायद वो ही हमें बहुत अच्छा बनाते हैं. एंड इफ यू आर प्योर सोल तो मैजिक आपके पास आके ही रहता है. एंड विद द हेल्प ऑफ मैजिक आप जो भी सिचुएशंस हो, जो भी परिस्थितियां हो, तो आपको पता है अपने आप को कैसे ट्रेन करना है. जैसे अपनी फैमिली सबसे अहम हिस्सा है हमारे लाइफ का. आप बहुत बदलाव देख पाते हो, जैसे मैंने देखा है कि आई एम ऑलवेज पॉजिटिव. मैं सबको, फिर वही मेरे वाइब्स जाते हैं एंड देन दे फील ऑल्सो नाइस. माई मम्मी स्माइलिंग, माई पार्टनर सेज कि हाँ, मतलब जब भी मैं नहीं रहती हूँ तो ही सेज कि बाप रे, योर जॉब इज सो डिफिकल्ट. ये और दिस इज ऑल्सो मैजिक कि समवन अप्रिशिएट योर जॉब एंड मेनी थिंग्स स्मॉल स्मॉल. और सबसे बड़ा मैजिक तो हुआ है कि मतलब मुलुंड इज अ रियली गुड एरिया. मतलब सम ऑफ गुड एरिया वी कॉल मुलुंड ऑल्सो. और मम्मी पापा के बिल्डिंग में मैंने सोचा भी नहीं था कि नहीं, नियर जैन टेम्पल एक मेरा घर हो जाएगा. मैं हमेशा सोचती थी ड्रीम ड्रीम, एंड मैजिक हैपेंड. एंड लास्ट 3 years back I purchased a flat in same society because I am the single child of my parent. मैं ही लड़का हूँ, मैं ही लड़की हूँ. तो मैं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा छीके भी तो मैं रहूं साथ में. एंड मैजिक हैपेंड. आप सिर्फ यूनिवर्स को बोलते जाइए, यूनिवर्स देयर. तो शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपकी जिद पूरी करने में या आपकी कामनाएं पूरी करने में लग जाती है. एंड सबसे अहम बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे
कि सब सिचुएशंस में मैजिक आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग सिखाता है, हैप्पीनेस, अच्छापन। कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं ना, तो ऐसे आपने सिखा दिया है हमें थिंक करना कि क्या है उसमें अच्छाई। ह्यूमन बीइंग है, हम थोड़ा नेगेटिव पहले देख लेते हैं, अरे ऐसा हुआ, बट अगेन मैजिक आपको जगह पे लेके आता है, नहीं नहीं, समथिंग इज देयर, बी थैंकफुल, वॉट एवर गुड और वॉट एवर, कुछ भी, जरा भी ये इतना किंचित भी अपने को अच्छा लगा तो से थैंक यू, एंड फिर हम सिचुएशन से बाहर आते हैं, एंड दैट इज अ बिग डील। एंड आपने सच में, आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि इफ देखिए, मतलब यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब कि आप इतने सबसे कांटेक्ट में रहते हैं, हम चाह कर भी डिफिकल्ट होता है, बट विल ट्राई आवर बेस्ट विथ यू, एटलीस्ट छोटा सा हिस्सा हम ट्राई करेंगे पक्का, मैं और प्राची। बट मैं आपको कहना चाहती हूँ तहे दिल से कि आपने हमें बहुत अच्छे मोड़ पे लाके रखा है कि कैसे सोचना है, कैसे चलना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट अहम बातें हैं। ये घर गाड़ी बंगला तो आते रहेगा और बहुत आते रहेगा, बट एट द सेम टाइम आपके मन की परिस्थिति को या मन को कैसे बैलेंस रखना है और कैसे हैप्पीनेस की ओर लेके जाना है, ये सिर्फ मैजिक के थ्रू ही हो सकता है। एंड once again I am thankful, love you, love you, love you lots, thank you dear, thank you. Thank you so much, Shraddha, for coming and contributing here. God bless you so much. And चलिए, तो अभी चलते हैं. Anybody else? Yes. Anybody? Now, first thing is, let me tell you about this session now. तो आपने सुना. Thank you all the participants who came here and to share what you have got, so that ये जो नए आए हैं, let me tell you, most of the participants here are youngsters. Okay, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके ड्रीम्स जो हैं यहाँ पर पूरे होने वाले हैं. कैसे, वो तो आपको ज्वाइन करने पर ही पता चलेगा. तो आज के सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं क्विकली. तो व्हाट इज दिस सेशन अबाउट एंड हाउ विल द सेशन गो? So this is a 28 days journey. Okay, so first thing, to commit for 28 days is a very big thing. बाप रे, कोविड में तो कर लिया, अब बिजी लाइफ में ये करना. तो as Shraddha said, once you get into the mood, it gets inside you. You will never forget it. And as you all are into this session, it is not a coincidence. Accidents don't happen. Everything is planned. Magic has come to you. You have not come to magic. आपने इस जादू को अपनी तरफ आकर्षित किया है. ठीक है, तो चलिए आज की बुक देखते हैं. बुक हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसको हम समझेंगे हिंदी में, और आपको क्या करना है इन 28 दिनों में. तो वेरी स्मॉल चैप्टर्स आर देयर, स्मॉल practices are there which we will be following. You don't have to have any extra time. There are students with us, there are people who are working, correct? They don't have time. So don't think that कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है. जैसे Haripriya is appearing for competitive exam, so daily contributing 30 to 35 minutes here, listening to the chapter, okay, and following some practices. प्रैक्टिस के लिए में अलग से टाइम नहीं निकालना है, वही जो हम सुबह में करते हैं 10-15 मिनट्स बिगिनिंग ऑफ योर डे और शाम को सोते वक्त. रोज का मतलब मेरे ख्याल से 15 मिनट से ज्यादा कभी भी आपका समय नहीं जाएगा. इट इज इंटीग्रेटेड इनटू योर लाइफ. सो आई विल शेयर द बुक. लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव गॉट दिस फिजिकल बुक. तो आप ये हिंदी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी रख सकते हैं इस बुक को लेके. ओके, यू हैव गॉट द बुक, वेरी गुड. तो इफ यू डोंट हैव, डजंट मैटर, वी विल शेयर द बुक. बट अच्छा होगा कि अगर आपके पास ये हार्ड कॉपी भी हो. ठीक है, तो ये बुक में आपको करना क्या है, आज मैं आपको सिर्फ रूल्स बताने वाली हूँ. पहली बात, डू यू बिलीव इन मैजिक? अब शायद आप करते हो, नहीं करते हो. अगर आप सोचते हो लेट मी गिव इट अ ट्राई करके देखते हैं, तो इट इज नॉट फॉर यू. इट विल नॉट वर्क फॉर यू. इट विल वर्क, ये तभी काम करेगा जब आप सोचोगे कि यस आई बिलीव इन मैजिक. और हम सब मैजिक में बिलीव करते हैं. कैसे? जब हम बच्चे थे
तो सेंटा क्लॉज आएगा, चीजें लाएगा, हम फट से बादलों में हमें शेप दिखते थे, खुश होते थे, वाओ जादू, करेक्ट, कोई कुछ भी बोले विल बी हैप्पी। सो क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं लॉजिक ज्यादा आने लगता है, जिम्मेदारियों से परेशानियों से हम भूलकर उस बचपन को, उस बचपन वाली फीलिंग को हम भूल जाते हैं। सो वी ऑल ट्रस्ट इन, यू ऑल बिलीव इन मैजिक, बट वी हैव जस्ट forgotten it. Now talking about how to bring this magic in our life. So this magic you can bring in your life by understanding the laws of universe. जैसे हम एक देश में रहते हैं तो एक देश के नियम फॉलो करते हैं, करेक्ट ना। हम परदेश में जाते तो वहां के नियम फॉलो करने पड़ते हैं। क्या होता है अगर हमें कोई नियम नहीं पता तो दंड लग जाता है, पेनल्टी लगती है ना। अब जब हम इस दुनिया में आए हैं ना, अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया के नियम हमें स्कूल में भी नहीं सिखाए जाते। तो इस बुक में यूनिवर्सल लॉज इस दुनिया के, अब यूनिवर्स हम बोलते हैं, श्रद्धा ने कहा आप यूनिवर्स से मांगिए आपको मिलेगा। तो व्हाट इज दिस यूनिवर्स? वो शक्ति जो इस दुनिया को चला रही है। क्या वो शक्ति है जिससे रोज सनराइज होता है, सनसेट होता है, मौसम बदलते हैं? कुछ तो है जो धरती टिकी हुई है बराबर। उस शक्ति को हम यूनिवर्स कह सकते हैं, सदगुरु कह सकते हैं, साईं बाबा कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, मेरे प्रभु जी कह सकते हैं, कान्हा कह सकते हैं। किसी भी नाम से उस शक्ति को पुकारिए, यूनिवर्स कहिए। हम उस शक्ति को पूज रहे हैं और हम इस यूनिवर्स के, इस दुनिया के नियमों को समझेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है? तो ये यूनिवर्स के जो लॉज है ना, ये कई सालों से, कई साल नहीं हजारों सालों से छुपा के रखे गए थे। कोई भी नियम जो है ना, कुछ पास ऑन करना होता है ना, तो उसे छुपा के रखते हैं, कोड लैंग्वेज में लिखते हैं। क्यों? ताकि वो नष्ट ना हो जाए इन्वेशन से अटैक करके, करेक्ट, फ्रॉम द अदर कम्युनिटीज एंड दिस। तो उसको छुपा के रखा जाता था, तो उसको हम मिस्ट्री कहते हैं, रहस्य। रहस्यों में कोड में लिखा जाता था। तो उसका एक रहस्य है जो हम अभी देखेंगे, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, जिस पर ये बेस्ड है। आई विल शेयर द बुक विथ यू नाउ एंड वी विल रीड इट टू। व्हाट डज इट से? ये क्या रहस्य है जो छुपा के रखा गया है? सो फर्स्ट थिंग इज, यस, you need to if you have the book, well and good. If you don't have, you can look on the screen and read together. We will be reading it in English, understanding it. अगर आपको चाहिए तो हम हिंदी में भी किताब पढ़ सकते हैं। तो it says, yes, 1 second, ये है द मैजिक, इसका सीक्वल है द सीक्रेट, प्रीक्वल उससे पहले। It says for more than 20 centuries, 2000 सालों से, words within a sacred text have been mystified, confused and misunderstood by all who read them. कई बार ये वर्ड्स जो है एक रिडल में दिए गए हैं और ये मिसअंडरस्टूड हुए हैं। और इस बुक में ये सीक्रेट लाइफ चेंजिंग नॉलेज जो है, रोंडा बर्न ने दुनिया को सिखाया है 28 दिन की जर्नी में। अब इसमें उन्होंने क्या सिखाया? व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन? यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द मैजिक, हाउ टू प्रैक्टिस डेली, क्या टेक्निक है और इस टेक्निक को हम कैसे अपने जीवन में उतारेंगे। सो इट इज नॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन, डियर फ्रेंड्स। Today's world is full of information. It is flooded with information. एक वर्ड आप डालो, 1000 वीडियोस, 1000 रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन इट इज नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन। हाउ टू अप्लाई दिस इंफॉर्मेशन इनटू योर लाइफ इज कॉल्ड विजडम। और वही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि उस इंफॉर्मेशन को हमारी जिंदगी में हम कैसे
अप्लाई करें। ठीक है, तो ये 28 डेज में हम ये सीखने वाले हैं टू अप्लाई दिस नॉलेज इन अवर एवरीडे लाइफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर वॉट योर करंट सर्कमस्टेंस, आप कितनी, आपकी उम्र क्या है, आप कैसे हो, आप क्लेवर हो, आप नहीं हो, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, या आपकी आज कितनी भी परिस्थिति अच्छी ना हो, फिर भी द मैजिक इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ। आप यहाँ आए हो, आपकी पूरी लाइफ जो है यहाँ पर चेंज होने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉस की, और उसमें एक यूनिवर्सल लॉ, उससे पहले हम कंटेंट्स देखते हैं। कंटेंट है अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, ब्रिंग मैजिक इनटू योर लाइफ, मैजिकल बुक। कल हम करेंगे काउंट योर ब्लेसिंग्स डे 1। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। मैजिक मनी है, मैजिक हेल्थ है, वर्क्स लाइक मैजिक, मनी मैग्नेट, मैजिक डस्ट एवरीवन, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, हील योर रिलेशनशिप्स, यू नो यू हैव सिबलिंग के साथ झगड़ा होता है बार बार, नेबर के साथ होता है, किसी के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, यू कैन इम्प्रूव दैट, मैजिकल फुटस्टेप्स, मैजिक वॉन्ड, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं जो हम 28 दिन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उस मैजिकल उस मिस्ट्री की जो कि यहाँ पर रिवील किया गया है। ये मिस्ट्री ये है, whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। पत्थरों पे जो लिखा गया था ना, वो ये लिखा गया था, जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। अब ये बहुत अन्याय वाला लगता है ना, जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उसे जो है वो भी ले लिया जाएगा। अब इसमें मिसिंग वर्ड है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या है? शुक्राना, धन्यवाद की भावना। जिसके पास धन्यवाद की भावना है जिस भी चीज के लिए, उसे वो चीज और दी जाएगी। ठीक है, तो ये वाला यूनिवर्सल एक लॉ है, एक सीक्रेट है, मिस्ट्री है, जो हमें यहाँ पर सीखना है। अब लॉ क्या बोलता है? अगर आप बोलते हो कि यार मेरा जॉब अच्छा नहीं है, ठीक है, या यार थोड़ा मेरा ना घर बड़ा होता, घर अच्छा नहीं है, या मेरी पैसे की थोड़ी परेशानी है, या मेरी हेल्थ की परेशानी है, यार ये ठीक हो जाए, तो क्या होगा? इट सेज दैट इफ यू आर, when you say that my life has a problem, my life is in mess, my marriage is in trouble, जैसे ही आप ये सोचते भी हो या बोलते भी हो, आप ऐसी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। बट इफ यू थिंक अबाउट व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, आपके जॉब आपकी मनचाही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको धन्यवाद है कि शुक्र है मुझे इतने पैसे तो मिल रहे हैं इस जॉब में, ठीक है, शुक्र है कि मैं बिजी हूं, मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर। ग्रैटिट्यूड इज मैग्नेटिक एंड दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। और ये साइंटिफिक है, इसमें रिलीजन से, धर्म से, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। हमने विज्ञान में पढ़ा है कि लेना देना नहीं है, मतलब इसमें आपको उससे काम नहीं, जबकि है तो सब कुछ एक, साइंस, विज्ञान और अध्यात्म कोई दो अलग चीजें नहीं है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब आप ग्रैटिट्यूड को अप्लाई करते हो न्यूटन के लॉ पे, तो एवरी एक्शन ऑफ गिविंग थैंक्स कॉजेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ रिसीविंग। जब आप गिविंग थैंक्स करते हो, गिविंग का ऑपोजिट क्या होता है? रिसीविंग। और आप क्या दे रहे हो, और इक्वल क्या मिलेगा? आपने जिस चीज के लिए थैंक्स दिया है वही चीज आपको मिलेगी। तो ये कैसे इक्वल एंड ऑपोजिट क्या है? गिविंग का ऑपोजिट रिसीविंग। तो जब आप दे रहे हो तो उसका ऑपोजिट होगा मिलेगा। तो आप जो दे रहे हो उसका इक्वल आपको मिलेगा। तो अगर आप किसी को बहुत सारी दुआएं दे रहे हो, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, वही आपकी तरफ आएगा। ठीक है, और ये लॉ है। और ग्रैटिट्यूड जो है एक गोल्डन स्वर्णिम धागा है
हर रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हमने ये सीखा है कि हम शुक्रिया अदा करें। ओके, और ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट इंश्योरेंस। अगर आप बोलोगे भाई भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, वेरी गुड, अब उसको टिका के रखना है कि नहीं? अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है तो आपको इंश्योरेंस तो चाहिए हेल्थ के लिए। आपका जॉब बहुत अच्छा है, अच्छा, तो उसको टिका के भी रखना है ना, उसके लिए ये इंश्योरेंस है, गारंटी है। आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। तो अगले 28 दिन के लिए हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि एक ग्रैटिट्यूड एक्चुअली कैसे होता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग रहे हैं, संत रहे हैं, हिस्टोरिक पीपल रहे हैं, फिलोसोफर्स रहे हैं, सभी ने ग्रैटिट्यूड के पावर का इस्तेमाल किया है। फिर राइटर अपनी स्टोरी बताती हैं कि कैसे जब उन्होंने ये बुक शुरू की थी, द सीक्रेट, उससे पहले उनकी लाइफ कैसी थी। बिल्कुल कर्जों में थी, उनकी कंपनी बंद होने वाली थी, उनके रिलेशनशिप्स वर इन डॉल्ड्रम्स, हर finances were not good, her health was weak, and once she learned, she started practicing gratitude, her life changed and she became happier. Gratitude changed me and my whole life changed magically. अब आपको ये मैजिक आपकी लाइफ में लाना है, तो तैयार हो जाइए कि आप कैसे इस ग्रैटिट्यूड से आपके रिलेशनशिप को जॉयफुल रिलेशनशिप बनाएंगे, आपकी हेल्थ को जादुई तरह से हैप्पी करेंगे, और आप जो चाहें, आपकी विशेस छोटी हो बड़ी हो, सब कुछ आप अचीव कर सकते हो मैजिकली। और एवरीथिंग विल बिकम एफर्टलेस। एग्जाम पास करना एफर्टलेस, कोई कोशिश ज्यादा लगेगी नहीं। देखिए एग्जाम तो वही रहेगा, बुक्स वही रहेंगे, सिलेबस वही रहेगा, लेकिन जादू ये होगा कि आपके लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा। Something will change inside you because ultimately you are going to appear not only in any competitive exam but in the exam of your life. हम सब यहाँ पृथ्वी की पाठशाला में कुछ ना कुछ सीखने आए हैं, ठीक है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के साथ। तो एवरी डे विल बी मैजिकल, एवरी डे विल बी फिल्ड विथ मोर मैजिक देन व्हेन यू वर अ चाइल्ड। आप वापस जब बच्चे थे और जो खुशियां महसूस करते थे, वही सब आपको इस जर्नी में, 28 दिन की जर्नी में आपको मिलेगी। तो मैजिक फॉर्मूला क्या है कि नॉलेज तो है, कई लोग कहेंगे हाँ भाई हम भी बोलते हैं वाहे गुरु हमेशा बोलते रहते हैं, भाई हम भी धन्यवाद करते रहते हैं, लेकिन ये नॉलेज है, लेकिन इसमें ट्रेजर है कि आप अप्लाई कैसे करते हो, प्रैक्टिस कैसे करते हो इसकी। ओके, एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट। ओके, नो इंफॉर्मेशन, ओनली इंस्पिरेशन। तो ये दो वर्ड क्या है जो आप प्रैक्टिस करोगे डेलिबरेटली अपनी जिंदगी में, बिल्कुल डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब क्या? होशो आवाज में सोच के, जानबूझ के आपको बोलना है थैंक यू। ये मैजिक वर्ड्स थैंक यू। तो कभी कभी हम ना, बच्ची ने मुझे पानी ला के दिया, बोला थैंक यू, और मैंने देखा भी नहीं बच्ची को, तो आई हैव टू बी थैंक यू, लाइक ध्यान से बोलना है, ठीक है। मोर डेलिबरेटली यू थिंक एंड से मैजिक वर्ड्स थैंक यू, मोर ग्रेटिट्यूड यू विल फील। आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, और जितना आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे और सोचोगे, उतना आपको अबंडेंस मिलेगा। इस सेशन में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कड़ी है फीलिंग। जैसे आपने देखा श्रद्धा, प्राची, जिन्होंने भी शेयर किया, उन्होंने बिल्कुल फीलिंग, दे वर फीलिंग सो हैप्पी एंड सो जॉयफुल, कि जैसे वो मैजिक अभी हो रहा है उनके साथ, इतने वो फीलिंग में थे, उनके चेहरे पे वो रौनक अभी भी दिख रही है। करेक्ट। सो न्यूटन्स लॉ इज 1 for 1, व्हाट यू गिव यू रिसीव इक्वली। तो जितनी आप फीलिंग से ग्रेटिट्यूड करोगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने आपको सेकेंड स्टेप बोला, यू हैव टू फील। ओके, नॉट जस्ट से एंड डू द प्रैक्टिस, आपको अपनी फीलिंग पर ध्यान देना है। अगर आप थोड़ा सा फीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा सा रिजल्ट, ज्यादा प्रॉपरली होमवर्क करते हैं तो जैसे ज्यादा मेहनत करोगे
तो ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ग्रैटिट्यूड को अच्छे से फील करना है। अगर आप बोलते हो भाई मुझे तो फीलिंग कम आती है, तो कोई बात नहीं, इन 28 दिनों में आप सीख जाओगे। Only you have to follow the instructions. There are 28 magical practices. So we are meeting 28 days. Tomorrow counting day 1. Okay. And that will be, sometimes chapters are very small. We are going to read them and then we are going to practice it. We begin with sharing first, correct? Reading the chapter, then reading the practices, any doubts and questions towards the end. तो अब कल के लिए आपको क्या करके आना, और ये सभी के लिए है। क्या आपने सोचा आपको क्या चाहिए? What are your dreams? आपको चाहिए क्या? मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मेरी बेटी को ये मिल जाए, मेरे बेटे को वो मिल जाए, ये लाइक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, या बिजनेस इतना हो जाए, मेरी खुद की ऑफिस हो जाए, ठीक है। और क्या ड्रीम्स? तो सबसे पहले अगर आपने अपनी फैमिली के लिए मांग लिया, सबके लिए मांग ले, तो अपने लिए भी लिखिए क्या ड्रीम्स है। ओके। और इसमें कंजूसी नहीं करनी है। तो कैसे ड्रीम्स लिखने हैं आपको? हर डिटेल सोचना है आपको लाइफ में। ये आपका कल सेशन में आने से पहले का असाइनमेंट है। और सब जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं लाइव, यू ऑल कैन टेक अ पेपर एंड पेन, और प्लीज अपने लिए इतना समय निकालिए कि आप सोचें कि आपको क्या चाहिए। कई बार ना लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या चाहिए। मतलब खुश रहना है ऑफ कोर्स, और खुश रहने के लिए अपने सपने भी पूरे करने हैं। तो यस, लिखिए आपके सपने क्या है। ये मत सोचिए कि ये पूरा होगा नहीं होगा, कैसे होगा पता नहीं, ये प्रगति मैम और ये सब लोग क्या बोल के गए, इनके सपने पूरे हो गए, मेरे होंगे कि नहीं। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर फर्स्ट ऑल द 4 एरियाज। तो आप पहले तो एक कोरी बुक ले लेंगे, बहुत अच्छी कोरी बुक, न्यू मंथ, नाइस, टोटल ब्लैंक बुक, एम्प्टी बुक, मतलब लाइन्स हो, फ्रेश बुक एंड अ फ्रेश पेन, गुड पेन, स्मूथ पेन, जो पेन लिखते लिखते आपको मजा आ जाए। नॉट कि अटक रही है, अरे ये आधी पेन आज उससे लिखा उससे लिखा, नहीं। कीप अ स्पेशल पेन इनसाइड दैट बुक। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। एक फ्रेश बुक लेनी है इस सेशन के लिए, फ्रेश कॉपी बनानी है और एक अच्छी वाली पेन रखनी है। उसके बाद आपको हर पन्ने पर एक एक टॉपिक लिखना है। जैसे आपको लिखना है पहले हेल्थ, वो हेल्थ कैसी चाहिए, एरिया ऑफ हेल्थ में आप क्या चाहते हो, कि मैं बहुत एक्टिव रहना चाहती हूँ, मैं बहुत हेल्थ, कैसे दिखना चाहते हो आप, अगर आप कुछ बहुत कसरत करना चाहते हो, या आप बहुत लंबे बाल चाहते हो, जो भी, ब्यूटी, हेल्थ, वॉट एवर यू वांट। आप मैराथन दौड़ना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके घुटनों का दर्द चला जाए, करेक्ट, कि आप बहुत सारा एक्टिवली काम कर सकें, जो भी। राइट वॉट यू वॉन्ट। देन हेल्थ हो गया, देन यू राइट अबाउट योर फाइनेंस, आपको पैसों में क्या चाहिए, जॉब कैसा चाहिए, कितनी मंथली इनकम चाहिए आपको, हो गया वेल्थ। देन यू हैव टू राइट अबाउट योर कैरियर, कि आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, एक अच्छा जॉब करना चाहते हो, या आप व्हाट, कि आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो, आपके प्लान्स क्या है, कि मेरी बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, वॉट एवर इट इज, कि मैं 50 लोगों को नौकरी पे रखूं, 500 लोगों के लिए काम दूं, इट्स अप टू यू। सो थिंक अबाउट योर करियर। ओके, उस नेक्स्ट पेज पे एक एक पेज छोड़ते जाए, हर एक पेज पर आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले हेडिंग देंगे आप हेल्थ, second relationships, finance, then your relationship, when you're talking about relationship, किसी के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है या आप चाहते हो बहुत बेहतर हो जाए, it could be your life partner, your mom, your dad, आप डैड से डरते हो, मॉम से डरते हो, and you want very good relationship, write that down. What do you want in that area of your life? You can be specific, but remember, your job is simply to write what you want. आपको कुछ नहीं सोचना है कैसे होगा, आपको सिर्फ लिखना है आपको क्या चाहिए, और आपको पूरे डिटेल में लिखना है। अगर आपको पैसे चाहिए अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, यहाँ प्रमीला जी शेयर करने वाली थी पर उन्होंने किया नहीं, वो चाहती थी कि उनके बच्चे जो हैं वो जाएं लंदन पढ़ने। उसके दोनों बच्चे, हर डॉटर हैज डन साइकोलॉजी MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम लंदन, ठीक है। तो ये उनका एक ड्रीम कम ट्रू है। सी, एवरी ड्रीम कम्स ट्रू। हेलो,
इट्स नॉट 1 2 3 4 5 लिखती हूँ, 2 तो हो जाएंगे, नहीं, 500 लिखिए। और बिलीव मी, ये 500 के 500 पूरे होंगे, डिपेंड्स ऑन कितने कंटिन्यूटी में, कितने शिद्दत से आप करते हो। आप घर से गाड़ी लेके निकलते हो दोस्तों कि हम पहुंचेंगे, समझ लीजिए कोई हिल स्टेशन, और आप बीच में रुक गए वड़ा पाव खाने, कोई बात नहीं, चाय पी ली, कोई बात नहीं, और फिर आप वहीं रुक गए धीरे धीरे टाइम पास करते, तो आपको ज्यादा समय लगेगा मंजिल पे पहुंचने। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस, सतत, सतत मराठीत म्हणतात ना, कंटिन्यूअस, लगातार आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो आपके सारे, राइटर ने प्रूफ के साथ बताया है, गारंटेड, और आई एम देयर, और हमारे पार्टिसिपेंट्स ने शेयर किया है, सारे सपने, 1 2 3 4 नहीं, ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ओके, जैसे अगर आपको ट्रैवल करना है, देन राइट डाउन अबाउट ट्रैवल, तो नेक्स्ट पेज पे लिखिए ट्रैवल। अगर आपको घूमना है, गोल्डन टेम्पल जाना है, फॉरेन जाना है, लेकिन प्लीज बी क्लियर विथ व्हाट यू वांट टू राइट। ओके, तो ऐसे मत लिखिए कि मुझे वर्ल्ड टूर करनी है, तो वर्ल्ड टूर में भाई अफ्रीका भी आ गया, एंटार्क्टिका भी आ गया, आपको वहां जाना है तो आप सोच लो, श्रीलंका, वेयर यू वांट टू गो। तो आई रोट लद्दाख, हो गया। आई रोट भूटान, हो गया। आई रोट मणिकर्णिका घाट, हो गया। आई रोट केरला, हो गया। अरे आई वेंट टू तिरुपति ऑल्सो। देखिए, मैं आपसे शेयर करना बोल रही, मैं तिरुपति भी जाकर आई हूँ। और ऑल ऑफ अ सडन, मतलब बस हो गया। और ये सारी चीजें जब से मैं मैजिक से जुड़ी हूँ, और मैंने जो जो चीजें ट्रेवल में लिखी हैं, वो सारी कंप्लीट हुई हैं। और क्या होता है, जब कंप्लीट हो जाती है उसको हम टिक मार्क कर देते हैं और नया जोड़ देते हैं उसमें, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, नो, लाइक अ गेम, you can play it. Of course you have to invest some time of your life here. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। If you want a perfect partner, तो लिखिए every detail, कैसा आपको पार्टनर चाहिए, कैसे आपको फ्रेंड्स चाहिए, कैसे रिलेशनशिप चाहिए, हेल्थ कैसी चाहिए आपको, ड्रीम हाउस चाहिए, तो यस, मैंने ड्रीम हाउस यहीं से लिया हुआ है। आपको कैसे कपड़े चाहिए, अप्लायंसेस चाहिए, आपको वैसे लिखना है। If you want to achieve something such as passing an exam, Haripriya, it's for you. Getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, business person, whatever it is you would like to achieve, क्या करना है हमें? Write it down। और कैसे लिखना है? स्पेसिफिक। जैसे कि हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर देते हैं कि भाई साहब साउथ इंडियन लेके आ जाओ कुछ, तो बोलेगा क्या लाऊं मैडम, डोसा, इडली, मेंदू वड़ा, यू नो हाउ दे से। हाँ भाई, आप इडली वड़ा लेकर आओ, तो बोलेगा मैडम 2 इडली 2 वड़ा, कि एक साथ इडली वड़ा, तो आप बोलेगे यार हाँ ये भी है, 1 इडली 1 वड़ा लेकर, अच्छा भाई लेकर आएगा। देन यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आपको सांबार उसी के ऊपर चाहिए कि सांबार अलग से चाहिए, isn't it? And then you are clear what you want। उसी तरह जब आप लिख रहे हो तो आप प्रॉपर डिटेल लिखो। आप ऐसे नहीं बोलोगे मुझे बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। नो, आई एम गेटिंग 96%, clear, I am getting। So I remember when my daughter was in 10th standard and she told me, we were doing this, I suppose that time I was practicing Nichiren Buddhism at that time, और उसमें भी कहते हैं no prayer goes unanswered। तो माय डॉटर, यू नो, शी इज आस्किंग मी, मम्मा आपको क्या लगता है मुझे कितने मार्क्स आएंगे? तो मैंने कहा, यू नो, आई जस्ट सेड 96। शी सेड आपको नहीं लगता आपने ज्यादा नंबर बोल दिए? मैंने बोला नहीं, बोलने को तो मैं 98 भी बोल सकती थी, पर मुझे पता है 96। एंड गेस व्हाट, सिद्धि, यू आर देयर, हाउ मच डिड यू गेट इन 10th स्टैंडर्ड? विल यू से? ओके, से फ्रॉम हियर। Yes, can you hear her? So she got exactly 96%. What I said, that is real magic. Not even 96.1 or 95.9, 96%. That specific you have to be, and you have to believe it happens. Okay, so this is it. This assignment will be put on the group.
ये वाला जो हेल्थ एंड बॉडी के बारे में लिखना है, करियर और वर्क के बारे में लिखना है, पैसे में क्या चाहिए, रिलेशनशिप में क्या चाहिए, पर्सनल डिजायर्स क्या है, मटेरियल थिंग्स क्या है, आपको ब्रांडेड चीजें चाहिए, अपने घर में कुछ आर्ट चाहिए, कुछ पेंटिंग्स चाहिए, राइट दैम, जस्ट ऐड इन द लिस्ट। यू नो अमेजोन में विश लिस्ट होती है ना, सब ऐप में, कितने लोग विश लिस्ट में डाल के रखते हैं चीजें, करते हो आप लोग? तो बस ये भी विश लिस्ट ही है, डाल के रख देते हैं हम कि हाँ ये मुझे खरीदना है, राइट? वैसे ही है, आपको अपना ऑर्डर देना है। आज का सेशन है ऑर्डर देने का सेशन। 28 दिनों में देखते हैं आपकी कौन सी डिशेस तैयार होके आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है? सो व्हेन यू गेट क्लियर अबाउट व्हाट थिंग्स यू वांट, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. So this was day introduction, day 0. कल हम करेंगे count your blessings, ठीक है? So any questions, any doubts or anything you would like to share from today's session? Yes, registrations are still open because we have not started the day 1 yet. So day 1, day 2 तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। सिद्धि ने रजिस्ट्रेशन लिंक आप डाल सकते हो। जो लोग अगर ग्रुप में भी नहीं है तो आप यहाँ से लिंक कॉपी करके आप रजिस्टर कर सकते हो। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जो अमाउंट है इट इज जस्ट फॉर योर कमिटमेंट चार्ज। ओके, कमिटमेंट कि यू विल बी देयर, कुछ तो देते हैं ना कि मैं आऊंगी, so it is just that, and this will be channelized to for some noble cause. Okay, so anything, any doubt, you may raise your hand. आप कुछ पूछना चाहते हो साहिल? एवरीथिंग इज क्लियर? तो आपको, आप हिंदी में भी लिख सकते हो आपको क्या क्या चाहिए। यस, आप इस सेशन में क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपको क्या चाहिए इस सेशन से, ये सेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा या क्या चाहिए, आपकी क्या अपेक्षा है? यस, anybody would like to share or what you are taking away from this session today? आज के सेशन से आप क्या लेके जा रहे हो, क्या समझ में आया, वो भी शेयर कर सकते हो आप। एनीथिंग? यस, रश्मि, कैसे, वाज इट ओके विथ यू? इंग्लिश इज ओके विथ यू? यस। क्या क्या लेके जा रहे हो आप यहाँ से, आज क्या समझा आपने? यही, इस खाली सोचना नहीं है, ड्रीम जो है वो लिख के रखो, और आप नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है कि होगा कि नहीं होगा, बस खाली लिखना है और वो विश पूरी हो जाएगी। सुपर सुपर, लिखना है, सिर्फ सोचना नहीं है। तो ये ख्याली पुलाव नहीं है। तो हरिप्रिया इज राइटिंग डाउन व्हाट मार्क्स एग्जैक्टली शी इज गेटिंग। डू नॉट थिंक बाप रे इतना लिखूंगी तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। रिमेंबर सिद्धीज एग्जाम्पल, एग्जैक्ट। Okay, so write down, I am scoring this. Balle balle, you can draw some two dancing dolls also there. कि I am getting these marks. Okay, लेकिन लिखते specific. टाइम अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आए तो क्या करना? क्योंकि Thoughts लिखनी नहीं है ना आपको, वो नहीं लिखना है ना, आप तो प्रेजेंट में लिखोगे आपको जो चाहिए। अच्छा, हाँ, आपको खाली ऑर्डर देना है ना। देखिए, जब आप होटल में जाते हो ना, तो अब जैसे मेंदू वड़ा इडली लेते हैं एग्जाम्पल, तो क्या आपको ऐसे थॉट आता है कि बासी होगी क्या इडली, ठंडी होगी क्या इडली, सांबर अच्छा होगा क्या? नहीं ना, आप तो सोच समझ के अच्छे से रेस्टोरेंट में आए हो ना, उस वक्त तो डाउट नहीं आता है ना। हमें तो मालूम है कि वाह मस्त हम लोग खाने वाले, ऐसे इमेजिन करते हो सांबर की खुशबू आएगी, व्हाइट कलर की चटनी होगी, व्हाइट व्हाइट इडली, सॉफ्ट सॉफ्ट बड़ी होगी, गोल्डन मोड़ बड़ा वाला मेंदू वड़ा होगा, बराबर इमेजिन करके बैठते हो आराम से कि आ रहा है भाई, ऑर्डर दिया है बराबर आएगा। डाउट रहता है तभी, नहीं। पता है ना वेटर लाएगा, तो बस ऑर्डर दे दो। आप ऑर्डर ही दे रहे हो क्या, मुझे ये चाहिए, खुल जा सिम सिम, पता है ना, जो हुकुम मेरे आका, मैजिक लैम्प, जादुई चिराग। तो वहां पर जीनी आके पूछता है ना क्या चाहिए। तो भैया अगर कहीं से आपको कोई मिल जाता है और बोलता है तथास्तु, रश्मि बोल तुझे क्या चाहिए, तो बोले क्या बोलूं क्या बोलूं, क्या सोचूं क्या सोचूं।
बोलो ठहरो, अभी मैं आपको लिस्ट लाके देता हूँ, ये वाली लिस्ट, कंटिन्यू दूसरी बुक, कंटिन्यू तीसरी बुक, मुझे ये सब चाहिए एग्जैक्टली लाइक दिस। कितने लोग ऐसे रेडी हैं मुझे बताइए। आई थिंक प्राची, आर यू रेडी विथ योर लिस्ट? कब जीनी मिल जाए और पूछे बोल मानव तेरी क्या इच्छा है, तो क्या आपकी इच्छाएं रेडी हैं? होंगी नहीं होंगी कैसी होंगी वो तो बात की बात। आर यू रेडी ऑन योर साइड? आप तो रेडी रहिए, क्लियर रहिए ना कि मुझे क्या चाहिए। क्लियर? यस नो? यस हरिप्रिया? वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो खुद हमेशा हमें रेडी रहना है कि हमें क्या चाहिए। हर फील्ड में बहुत सारा, एवरीथिंग, छोटी मोटी चीज नहीं, सब कुछ। कभी कभी हम ना खुद को ध्यान भी नहीं देते हमें चाहिए कि नहीं। तो थिंक ओवर इट टुडे एंड टुमारो होल डे। राइट डाउन, एक फ्रेश अच्छी नोटबुक लें। जैसे कि आप बिल्कुल एक ऑर्डर दे रहे हैं अमेजोन पे, रेस्टोरेंट में, जो भी आपके ख्याल में आता है, और आपको ये वाली छोटा सा काम करके कल आना है। ठीक है, लिख कर आना है आपको क्या क्या चाहिए। आई एम गेटिंग, प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव लिखिए। बाद में आगे जाके आगे सेशन में आप सीखोगे कि एग्जैक्टली गोल कैसे लिखते हैं, कौन से वर्डिंग्स में लिखते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे चैप्टर्स आएंगे वैसे वैसे सिखाऊंगी। ठीक है, सो एनीबडी एनी क्वेश्चंस अबाउट द सेशन, अदरवाइज वी कैन क्लोज। हितेश, आर यू क्लियर विथ इट? चारवी, क्या आपको समझ में आर यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम? Yes. Okay, so will you please share what did you like it? Your mom Nikita, right? She has been a Yeah. very good reader, and she has been with us in the earlier sessions. So tell me, what are you taking for you? What did you understand today? That like you shouldn't dream small. I think dreams are really important, and actually that's one thing which really motivates, I think, everyone. If you write something down, that you're thinking, and okay, kahin na kahin, it's gonna happen. And I think that's what magic is, that you truly believe in yourself, and that belief turns into reality. So yeah. And you know what? You have to do the assignment or practice. Yeah. क्या करके आनी है कल तक? हाँ, हाँ, क्या करोगे? book में we write whatever you want Yes, to and achieve please take it. fresh book, fresh pen. Correct. Write down area wise. Okay. Areas of your life: health, happiness, personal desires. Correct. I will post it on the group. Okay. किस कौन सी एरिया में आपको लिखना है? Yes, Trupti, and then yes. Yes, so while writing the wish, no, we should feel very happy and as if wish has been completed and granted. तो कोई Yes. स्कोप ही नहीं है फिर आगे सोचने का, बस हो गया, मिल गया. So this is Yes. a take away. थैंक यू सो मच। सो नो डाउट, जैसे कि रेस्टोरेंट में गए, मैसूर मसाला डोसा, तो एकदम अपने दिमाग में क्या रहता है, वाह मैसूर मसाला डोसा आ रहा है। करेक्ट। तो वैसे ही आप जो लिख रहे हो, लाइक हमारी हरिप्रिया के एग्जाम के मार्क्स आ रहे हैं। करेक्ट। उसी तरह से हमारी रश्मि जी की हेल्थ, जो भी उन्होंने परफेक्ट लिखी है। करेक्ट। भले भले करे, आई डोंट नो व्हाट आर योर हेल्थ इश्यूज, वी विल डिस्कस इट एंड विल उसको ड्रीम में वी आर ब्रिंगिंग इट इनटू रियलिटी ऑन द पेपर। हमारे साहिब को क्या चाहिए, साहिब ने क्या लिखा हुआ है, वो सारा फुलफिल हो गया है, वो हम ऑर्डर दे रहे हैं। ओके, सो रिमेम्बर, बोल मानव तेरी क्या इच्छा है। जस्ट इमेजिन अ जीनी कमिंग आउट एंड सेइंग एंड यूजिंग, ओ मैं क्या मांगू, ओ माय गॉड BMW, नो नो ऑडी विल डू, ओ माय गॉड वेयर इज द गैरेज टू कीप द लिस्ट रेडी, बी स्मार्ट। ओके, एंड मैक्सिमम विशेस, मैक्सिमम, डोंट बी माइजर, कंजूस ना बने। जो भी आता है, जो भी चाहिए, राइट इट डाउन। ओके, so is it okay, shall we close? If I hope everybody has got it and shared. It is 10 o'clock, let us close. Tomorrow we are meeting 9 o'clock. Those who still want to register, you can register. We have time till tomorrow. ठीक है, और अगर आपको किसी को फ्रेंड को भी लेके आने, आप लेके आए। हम बुक रीड करेंगे यहाँ पर, और मैजिक प्रैक्टिस करेंगे, और हम शेयर करेंगे साथ में। ठीक है, चलो, लेट अस क्लोज विद ग्रैटिट्यूड।
To the Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, personally to my teacher, Grandmaster Chow Koksway, all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, beings of internet, beings of Zoom, beings of light, electricity, Rhonda Byrne को, all the participants, आपकी families को, मेरी family को, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, thank you, thank you. All of those who came and who shared, thank you so much for sharing. All the participants, thank you for joining this and looking forward to, yes, looking forward to completing all your dreams. एंड जैसे श्रद्धा, प्राची और प्रमीला यहाँ पर शेयर करने आए हैं, वैसे बहुत जल्दी ही आप लोग भी यहाँ पर शेयरिंग करेंगे. Correct? So I am seeing that everybody is raising hand and sharing with us. Okay. Thank you. Let us close. Good night. Goodbye. See you tomorrow, 9 p.m. Bye bye, everyone. You can unmute Thank you. yourselves. Thank you. Yeah. Thank you. Bye bye. Thank See you, ya. thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Bye bye.